Hello everyone, I Akshata Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 12, weight. In our previous classes of this chapter, we have understood all the related concepts of weight, the relationship between different measuring units like kilograms and grams. We have learned how to use them to solve the questions. Now let us start with the exercise. Here we are going to solve exercise number 12, question number 1 to 5. Children, these questions are related to word problems. So we have to understand the question first, then we will see which operation we have to apply, either addition, subtraction, multiplication or division. Let's get started with question number 1. Question number 1 is, Reena bought 1 kg 400 gram of tomatoes, 750 gram of chili, 2 kg 600 gram of potato and keeps in the bag. What is the total weight of her bag? बच्चों, ये क्वेश्चन में बताया गया है कि रीना जैसे वेजिटेबल शॉपिंग करने जाती है, वहाँ से अलग अलग सब्जियाँ लाती है, अपने बैग में रखती है। उन सारी सब्जियों के हमारे पास वेट दिए हुए हैं। लास्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बैग। उस बैग का टोटल वेट क्या है? उस बैग में हमने रखे हैं टमेटोज, चिलीज, then we have potatoes. So we have to find out the total weight of the bag. You know that जब भी हमें ऐसे total weight निकालना होता है, we have to find out the sum of all the यूनिट्स गिवन हियर। यहाँ पर जो हमें टोटल वेट दिया हुआ है हर टमेटोज, चिलीज और पटेटोज, मतलब हर सब्जी का, वो हमें टोटल करना होगा एडिशन करके। सो लेट अस स्टार्ट हियर। सबसे पहले हम एडिशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है दो यूनिट्स, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। सबसे पहले हम लिखेंगे टमेटोज का। सो द वेट ऑफ टमेटोज इज 1 kg 400 ग्राम। केजी में हम लिख देंगे 1 और यहाँ पर ग्राम्स में है बच्चों 400 ग्राम्स। आगे देखिए, फिर हमारे पास दिया हुआ है चिली का वेट। चिली में हम लिखेंगे 750 ग्राम्स है चिली का। किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है तो किलोग्राम में हम 0 लिख देंगे। चिलीज ग्राम्स वी हैव 750 ग्राम्स। देन वी हैव फॉर पोटैटो, so children, for potatoes we have the weight given is 2 kg 600 gram। kg में लिखिए 2 और grams में आ जाएगा 600। now as we have to find out the total weight, यहाँ हम लिखेंगे total और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ऐड। इनके बाद जो सारी यूनिट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। लेट अस स्टार्ट एडिंग बाय ग्राम्स। ग्राम्स में से सबसे छोटी यूनिट से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लास्ट हाउस में है सिर्फ 0, सो वी विल गेट 0 ओनली एज आवर आंसर। देन सेकेंड वी हैव 0 प्लस 5 प्लस 0, सो हियर वी विल गेट 5 ओनली। देन वी हैव 4 प्लस 7। चिल्ड्रन, 4 प्लस 7 is 11. Then in 11 we will add here 6. So 11 plus 6 is, here we will get 17. Okay, now for kgs we will add 1 plus 0 plus 2. So 2 plus 1 is, children, 3. Here we have got 3 kg 1750 grams. बच्चों देखिए, यहाँ हमें मिला है 3 kg 1750 grams. आपको पता है जब भी ग्राम्स में 1000 से ज़्यादा आंसर आएगा हम उसे 1000 में से माइनस करके kgs में ऐड कर देंगे। So here we will subtract 1000. ये जो 1000 ग्राम सब्ट्रैक्ट होगा ये कहाँ चल जाएगा? ये केजी में प्लस 1 kg हो जाएगा। सो हियर लेट अस सब्ट्रैक्ट फर्स्ट। 0 में से 0 गए, बचे 0। 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 0 इज 7, 1 माइनस 1 इज 0। नाउ इन kgs we will get 3 plus 1 is equals to, children, 4 here we will get. So this is our final answer now. The final answer is 4 kg 750 grams. This is the total weight of her bag after putting all the vegetables in the bag. Right, children? Here we have solved question number 1. Now let us move on to next question. This is question number 2. Manoj bought 10 kg bag of sugar from the market. While returning home, due to a hole in the bag, some sugar is scattered out through the hole.
and 8 kg 750 gram sugar remained. Find out the weight of scattered quantity of sugar. In this question it is given children that Manoj brings a sugar bag of 10 kgs. Manoj मार्केट से 10 किलो का शुगर का बैग लेके आता है. जब वो घर आता है तो उस बैग में देखता है कि एक होल हो गया है और जो बैग में क्वांटिटी है शुगर की वो कम हो गई है. वो घर आके चेक करता है कि अब बैग में सिर्फ 8 kg 750 ग्राम्स बचा है. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कितनी शुगर स्कैटर्ड हो गई थी, कितनी शुगर बिखर गई थी, वो हमें निकालना है. सो वी हैव द टोटल बैग वेट दैट वी हैड इनिशियली. टोटल बैग का वेट क्या था, 10 kgs था. घर आके चेक किया तो बचा था 8 kg 750 ग्राम्स. ये कम है तो जो बाकी की शुगर थी वही थी स्कैटर्ड शुगर दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. दैट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस. सो वी विल अप्लाई हियर सब्ट्रैक्शन. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हमारे पास 2 यूनिट्स में सॉल्व करेंगे हम, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. वी हैव द टोटल वेट ऑफ द बैग. टोटल वेट कितना है, 10 kgs है. यहाँ हमने kg में लिखा है 10. कितनी शुगर बची थी, देखिए रिमेनिंग शुगर जो थी वो है 8 kgs. Here we will write down in kgs 8 and in grams we have 750 grams. So children, to find out the scattered sugar quantity we have to find out here the difference. यहाँ हम करेंगे subtraction. अब देखिए हम start करते हैं ग्राम्स हाउस से सॉल्व करना. हमें 750 सब्ट्रैक्ट करना है ग्राम्स में से, मगर हमारे पास टोटल में ग्राम्स नहीं है. इसका मतलब हम बोरो करेंगे. केजी में से 1 kg माइनस कर दीजिए, यहाँ बचेगा 9. ये जो 1 है ये 1 kg है और ग्राम्स में जाके ये बन जाएगा 1000. दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर नाउ 1000 माइनस 750. देखिए 0 में से 0 गए, बचे 0. अब 0 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 एक बड़ी डिजिट है. हमें यहाँ बोरो करना होगा. इससे पहले भी है 0 फिर है 1. इसका मतलब इसे 10 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 10 में से 1 गए, बचे 9. यहाँ जाके ये बन जाएगा 10. सो 10 माइनस 5 इज चिल्ड्रन 5. 9 minus 7 is 2. So here we have got 250 grams. अब हमें subtract करना है 9 minus 8. Here we will get 1. So our answer is 1 kg 250 grams. This is the quantity of scattered sugar. Children, here we have solved question number 2. Now let us move on to next question. This is question number 3. Sheila is having a packet of 5 kg 470 gram and a box of 3 kg 690 gram. Weight of the packet is how much more than that of a box? बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है शीला के पास एक पैकेट है और एक बॉक्स है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो पैकेट है वो ज़्यादा वेट का है, ओके, ज़्यादा भारी है. जो पैकेट का वेट है वो है 5 kg 470 ग्राम्स और जो बॉक्स का वेट है वो है 3 kg 690 ग्राम्स. लास्ट में हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो पैकेट का वेट है वो कितना ज़्यादा है बॉक्स से. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट हियर द डिफरेंस. किसका डिफरेंस निकालना है हमें, द वेट ऑफ पैकेट सब्ट्रैक्टेड बाय वेट ऑफ द बॉक्स. यहाँ हम जो वेट है पैकेट का उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बॉक्स का वेट. सो वी विल गेट हियर द डिफरेंस. लेट अस राइट डाउन हियर kg एंड ग्राम्स. फर्स्ट वी विल राइट डाउन द वेट ऑफ पैकेट. पैकेट का कितना वेट है बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है किलोग्राम्स में है 5 एंड इन ग्राम्स वी हैव 470. सेम वे फॉर बॉक्स ऑल्सो इट इज गिवन टू अस. Box in kgs we have 3 kgs and in grams we have 690 grams. Since we have to find out the difference, हम क्या करेंगे यहाँ पर subtract करेंगे. Let us start subtracting now. चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ग्राम हाउस. अब देखिए हमारे पास जो पैकेट है इसके ग्राम्स में है 470 और बॉक्स के ग्राम्स की यूनिट है 690. 690 क्योंकि बड़ा है इसका मतलब हम 470 में से माइनस नहीं कर सकते हैं. हमें यहाँ बोरो करना होगा केजी में से. 5 माइनस 1 हियर वी विल गेट 4 ओनली. तो ये जो 1 kg है ग्राम्स में जाके बन जाएगा 1000. ओके, अब 1000 में हम पहले 470 ऐड कर देंगे, इसके बाद 690 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हियर वी विल गेट चिल्ड्रन 1470. दिस इज इन टोटल ग्राम्स. नाउ फ्रॉम दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 690.
अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0, वी विल गेट 0 ओनली। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वी विल बोरो हियर। 4 में से -1 हुए, यहाँ बचा 3 और ये बन गया है 17। 17 माइनस 9 हियर वी विल गेट 8। अब देखिए बच्चों 13 में से हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है, वी विल गेट हियर 7। सो आवर आंसर इज 780। दिस इज द आंसर ऑफ ग्राम्स कॉलम। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फॉर केजी। देखिए -1 ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ बचा है 4, सो 4 माइनस 3 वी विल गेट 1। सो आवर आंसर इज 1 kg 780 grams is the difference of packet and the box. That means 1 kg 780 gram is the weight of the packet, which is more than that of the box. Here we have solved this question. Let us now move on to next question. This is question number 4. A shopkeeper sells 250 grams packet of spices by grinding them from 6 kg of spices. Find out the number of thus formed packets. There is a hint also given to us कि 4 packets of 250 grams are prepared from 1 kg of spices. बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर 250 ग्राम्स के पैकेट बनाता है स्पाइसेस के। किस में से पैकेट बनाता है? एक टोटल उसके पास स्पाइसेस का बड़ा पैकेट है, वो है 6 kg। 6 kg में से वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है 250 ग्राम्स के। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे जब हम 6 kg में से 250 ग्राम्स के पैकेट्स निकाल देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर एक हिंट दे रखी है कि जो 4 पैकेट्स होते हैं 250 ग्राम्स के, 1 kg में से बनते हैं 4 पैकेट्स। So 6 kgs में से कितने पैकेट्स बनेंगे? So here we can apply the unitary method. जब हमारे पास 1 kg का जो कैलकुलेशन हमें दिया हुआ है, 1 kg में से हमारे पास बनते हैं 4 पैकेट्स। ओके, सो 6 kg में से कितने बनेंगे? सो हियर वी विल मल्टीप्लाई। देखिए 1 kg में से बन रहे हैं 4 पैकेट्स, सो 6 kg में से कितने बनेंगे? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 इज 24। सो आवर आंसर इज 24 पैकेट्स वी कैन मेक फ्रॉम 6 kg ऑफ स्पाइसेस। तो इसका मतलब 250 ग्राम्स के टोटल 24 पैकेट्स बनेंगे 6 kg ऑफ टोटल स्पाइसेस में से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. If 150 grams of wheat and 100 grams of rice per child is required for the midday meal, then how much wheat and rice is needed for 60 children? बच्चों जिस तरह से आप भी स्कूल में जाके मिड डे मील लेते हैं, yes, this is the scheme of our government school. So here it is given that 150 grams wheat चाहिए होता है हर बच्चे के लिए और 100 grams of rice चाहिए होता है हर दिन हर बच्चे के लिए। तो इस तरह से 60 children के लिए, that means for 60 children how much wheat and rice do we require? So here it is given for one child and we have to find out for more children. So what we will do here? We will do here multiplication. सबसे पहले हम निकालेंगे 60 children के लिए wheat. So first we will write down wheat for 60 children. बच्चों यहाँ एक बच्चे के लिए दे रखा है कितना चाहिए? 150 ग्राम्स। तो 60 बच्चों के लिए कितना चाहिए होगा? यहाँ हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 को 60 से। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। 0 0 इज 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए आपको 0 ही मिलेगा। देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 6। Now we have 6 zeros are 0, 6 5s are 30, 6 1s are 6 plus 3 we have to add, we will get here 9. So this is our answer for wheat required for 60 children, that is 9000 gram. Now we have to find out for rice. देखिए बच्चों राइस के लिए हमें दिया हुआ था हर बच्चे को चाहिए 100 ग्राम। तो इसी तरह से 60 बच्चों को कितना राइस चाहिए होगा? Let us find out. Now we will write down rice for 60 children. Again here we have to multiply. देखिए एक बच्चे को चाहिए 100 ग्राम्स, तो 60 बच्चों को कितना चाहिए होगा? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही मिलेगा। Now we have to multiply by 6 here.
देखिए 6 zeros are 0, 6 zeros are 0. Now 6 ones are is 6. Now we will add 0, 0, 0. Now 6 plus 0 is 6 only. This answer is 6000 gram. So hence we have found our answer, children. 9000 gram is wheat required for 60 children and 6000 gram is the rice required for 60 children. Here we have solved, children, exercise number 12, question number 1 to 5. These all questions were related to word problems. Now we will meet in the next class where we are going to solve our remaining questions. You all practice in the same way. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.